السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت فاضل جلیل مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب خیریت سے ہیں حضرت؟ اب ضرور دعائیں ہیں، فرمائیے۔ حضرت صاحب کہاں پر ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ میں اطہر حسین قادری بول رہا ہوں۔ اطہر حسین قادری؟ جی حضرت صاحب، حضرت سے فیضیاب حاصل کر لوں تھوڑا بہت۔ تو حضرت کہاں ہے ابھی؟ مبارک پور میں ہے کہ اور کہیں ہے؟ میں مبارک پور میں نہیں، ہم نے کہاں لگایا ہے؟ نہیں، آپ وہیں سے تو فارغ ہے نا حضرت، اشرفیہ سے؟ ہاں 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 نسبہ ہی لکھا ہوا ہے تو مبارک پور کی نسبت سے میں نے کہہ دیا۔ ہاں، میں بھی جمشید پور میں ہوں۔ ارے ٹاٹا جمشید پور، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت جیسے حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہاں، کے زمانے میں تو کوئی مسلک تھے نہیں؟ مسلک جیسے 4 مسلک کے علاوہ اب اگر کوئی کہے کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب کے بارے میں ایسی بات کہے کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب قاضی، چشتی، بڑے پیر صاحب، ان کا کوئی کا بھی ماننے والا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے جب تک کہ مسلک اعلی حضرت کو نہیں مانے گا۔ تو اس زمانے میں تو حاجی وارث صاحب کے زمانے میں شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ مسلک اعلی حضرت کیا ہے یہ بھی تو دیکھیے۔ مسلک یہ تو نام بلا وجہ دے کر کے انتشار پیدا کیا ہے۔ مسلک امام ربانی کبھی نام ہی نہیں دیا گیا، مسلک امام ربانی مجدد الفسانی۔ بالکل، امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ کے زمانے میں انہیں کے نام سے مسلک نہیں، کبھی نہیں چلا، کبھی نہ کتابوں میں لکھا گیا مسلک امام ربانی مجدد الفسانی، کسی کتاب میں نہیں ہے لکھا ہوا ہے۔ حضرت آپ بتا دو کسی بھی کتاب میں کہ اس طرح سے لکھا ہو مسلک امام ربانی کے نعرے لگے ہوں یا دھوم دھام کی ہو ان کے نام کی کبھی بھی؟ تو 500 سال پہلے تھے نا۔ تو حضرت یہ اس طرح سے جو اعلان کیا گیا ہے یہ کیا زمانے میں سنیے، نہیں یہ جائز ہے؟ اس زمانے میں جو مجدد ہوئے ہاں ان کے نام سے حق کی پہچان ہوتی تھی، یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی نیا مسلک ایجاد ہوا ہے۔ حضرت مجدد تو فقہ میں پہلے پوری بات سن لیجئے، فقہ میں 4 مسالک ہیں، اور بھی مسالک تھے لیکن سب مدون نہیں ہو سکے۔ تو پہچان کے لیے ہوا تھا اس زمانے میں 1200 سال پہلے۔ ہاں تو یہ اشعری ماتریدی جیسے کہلاتے ہیں نا، وہ تو 1200 سال پہلے کی بات ہے صاحب، 1200 سال پہلے کی بات ہے نا۔ اس کے بعد تو کبھی اشعری اس وقت جو ہے سنیے نا، اس وقت جو ہے اشعری ماتریدی حق کی پہچان تھے۔ مسلمان تو اپنے آپ کو سب کہتے تھے، اہل سنت جماعت سب کہتے تھے، لیکن جو امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری کے مسلک پر تھے، وہ حق پر تھے، تو پہچان کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں پہچان اعلی حضرت سے ہو رہی ہے، یہ مطلب نہیں کہ اعلی حضرت نے کوئی نیا مسلک ایجاد کیا۔ یہ وہی دین ہے جو 1400-1500 سال سے ہے، وہی مسلک ہے جو 1400-1500 سال سے ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں وہابی دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اس لیے وہاں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس مسلک پر ہیں جو جس کی تشریح اعلی حضرت نے کی۔ اظہر میاں صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کہ دونوں گروہ سنی ہیں، دیوبند والے بریلی والے بھی سنی ہیں۔ انہوں نے اشعری ماتریدی سے مثال دی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، غلط ہے یہ۔ میں تھا نا اس تقریر میں، بانگر مئو ضلع اناؤ میں نے بھی تقریر کی تھی۔ نہیں بھیجیے تو وہ تقریر ہے ہم کو۔ میں تھا اس میں، مجھے ادریس صاحب جب اظہر میاں کو مانتے تھے وہ بھی تھے اس میں، مولانا ادریس صاحب پیلی بھی تھی۔ نہیں یہ دیوبندی کو کبھی انہوں نے سنی کہا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا 2 گروہ کا فتویٰ ہے حسام الحرمین میں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بریلوی اشعری ہیں، اشعری بریلیوں کو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ ماتریدی ہیں۔ تو دیوبند والوں کو وہ بھی مسلمان مانتے ہیں، بریلی والے بالکل نہیں مانتے ہیں۔ مانتے ہیں صاحب، حضرت نہیں مانتے ہیں، انہوں نے رسول کی شان میں سلطان المجاہدین کی ہے۔ مولانا توقیر صاحب ہے نا، وہ تو مانتے ہیں، جاتے ہیں دیوبند۔ وہ بھی نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تینوں مسلک اپنی جگہ ہے، ہم قوم کے لیے جو ہے مل رہے ہیں، قومی مفاد کے لیے۔ اچھا، جامع ازہر والے تو مانتے ہیں مسلمان دیوبند والوں کو؟ جامعہ ازہر والے بھی مانتے ہیں، اسے کوئی کنفرم ثبوت نہیں ہے، جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ سارے دیوبندی جاتے ہیں، وہ پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں، نہ انگوٹھا چومتے ہیں، نہ یاغوث المدد کہتے ہیں، نہ حسام الحرمین کو مانتے، نہ امام کعبہ کو کافر مانتے۔ وہ انگوٹھا بھی چومتا ہے، مسجد نبوی کے امام نے انگوٹھا چوما، یہ مؤذن نے، تو پھر تو نماز ہو جائے گی، پھر تو نماز ہو جائے گی امام کے پیچھے۔ سنیے نا، میں خود گیا تھا عمرہ کرنے گزشتہ سال، وہاں نزدیکوں کو میں نے انگوٹھا چومتا ہوئے دیکھا۔
नहीं अंगूठा चूम रहा है तो हदीस ये शरीफ तो में है। 8वां अजूबा, ये तो 8वां अजूबे वाली बात कर दी आपने। 7 अजूबे हाँ, ही ये तो सही, यही सुनने सही है। मुझको भी 7 हैरत हुई अजूबे तो थी। सुनना कहते, 8वां अजूबा आपने बता दिया कि नहीं जी अंगूठा हाँ, चूम रहा है। मुझको भी जो है हैरत हुई। हाँ ये तो 8वां पता अजूबा चला है, कि हैरत तो होना ही चाहिए। 8वां अजूबा कब से बन गया है? हाँ, तो वो लेकिन मैंने देखा, तो फिर मैंने तो समझा नमाज कि हो वो जाएगी ना, हदीस जब अंगूठा चूम रहे तो नमाज हो जाएगी इमाम हरम के पीछे। कहते खर्ची अंगूठा चूमने से थोड़ी हो जाएगी। अंगूठा चूम रहा है जब हुजूर की और वो मोहब्बत हदीस में से तो तौबा चूम रहा करे, है। गुस्ताख अरे जब रसूल हुजूर की, सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम की गुस्ताख गुस्ताखी से कहाँ पे तौबा जाकर करे। जब अंगूठा चूम रहा है, आप कह रहे हो अंगूठा चूम रहा है, तो एक तरफ गुस्ताख, ये तो तजाद वाली बात है। इमाम को नहीं, मैंने देखा अवाम को, देखा अवाम को। अवाम तो अवाम जैसे अवाम है वैसे इमाम है। अरबी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लामा अरशद काजी ने लिखा है ना, तजाद हजरत के तजाद बहुत है। यानी हाँ। अभी आप कह रहे हैं कि अंगूठा चूमते हैं अरब वाले नजदी लोग, हाँ नजदियों के बारे में तो बरेलवी कहते हैं हाँ, कि मैंने तो देखा। तो आपने देखा तो इसका मतलब मोमिन है। जब अंगूठा चूम रहे हैं तो सिर्फ मुसलमान है। अंगूठा चूमने से कोई मोमिन हो जाएगा तो क्या बुतों काफिर की को चूम लेगा तो मोमिन थोड़ी कह तो लेंगे। क्या अगर बुतों की पूजा करने असल का है आदमी मोमिन होगा? अकायदो क्या बुतों को नजरियात, पूजेगा अगर जब मोमिन होगा? क्या भजन अकायदो करेगा जब मोमिन नजरियात अगर सुन्नी वाले हैं तो बिल्कुल मोमिन है, सुन्नी है। अकायदो नजरियात नहीं है तो नहीं है, चाहे अंगूठा चूमे या न चूमे। अगर जैसे बहुत सी गलत बातें हम नहीं मानते अरब वालों की, जैसे उन्होंने कुछ लिखा है, बहुत सारी बातें उनकी किताबों में है। जैसे तर्जुमे में हजरत क्या फर्क है देवबंद वालों के और अपने सुन्नियों के? तर्जुमे में फर्क है, बहुत सारा फर्क है। इस पर पूरी किताबें लिखी गई हैं। नहीं, सूर्य फतह की आयत का क्या तर्जुमा करते हैं देवबंद वाले? पहली आयत का ना फतह का खत्म होगी, वही जाके छूट गया था कल। इसका क्या तर्जुमा करते हैं देवबंद वाले? ना फतह का खत्म मुबीन अल्लाह। इस आयत का देवबंद वाले क्या तर्जुमा करते हैं? सूर्य फतह वसल्लम को गुनहगार खताकार ठहरा दिया है तर्जमे में। नहीं, किस तरह से बताएं? जबकि नबी मासूम होते हैं। नहीं, कैसा तर्जुमा किया है? ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श देना। तो इस पर से दिल में नियत नहीं है जैसे या उनके, खताओं को बख्श दे, ये कहा है। तो दिल में नियत ना हो जब भी फतवा लग जाएगा। दिल में नियत तो मासूम है। दिल पे फतवा जाहिर पे लगता है, दिल पे थोड़ी लग रहा है। दिल में हुक्म अल्लाह दिल में ताला तो का वो लगेगा, मासूम मानते हैं आखिरत ना। में फैसला होगा। दिल में तो मासूम मानते हैं ना। अब वही तो समझने की बात है, जैसे जिसके बारे में मासूमियत का अकीदा है, जैसे एक साहब तर्जमे में गुनाहगार कैसे लिखाएगा? नहीं, ये तर्जुमा किया है, मैंने ही पढ़ा। इन्ना फतह हुआ मुबीना, हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते शरीफ अल्लाह माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह, वो पूरा करे तुझ पर अपना एहसान, चलावे तुझको सीधी। बाद में तशरीह अच्छी की उन्होंने। अरे तशरीह से क्या होगा, तर्जमा ही गलत है तो इस पर क्या हुक्म लग जाएगा? क्या कुछ बिल्कुल लगेगा हुक्म। क्या लगेगा? तर्जमा गलत है। नहीं, और तो नहीं लगेगा। उसका यह अकीदा है कि नबी जो है गुनाह का सदूर हो सकता है। तो फिर गुमराही का हुक्म तो तर्जुमे पे गुमराही का हुक्म बिल्कुल तो वो नहीं लगेगा गुस्ताखी है, बिल्कुल गुस्ताखी है, गुमराही का हुक्म लगेगा। और हजरत अपने आलिम भी तो कर देते ना ऐसा तर्जुमा, नहीं करते क्या? नहीं करता। आप पढ़िए हजरत खातिमुल मुहक्किकीन जिनको लक़ब है हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ा 116 तफसीर अल-नशरा में यही तर्जुमा किया है जिस पर आपने गुमराही का हुक्म लगा दिया। नहीं, मैंने यही बताया, यही तर्जुमा। हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। मेरे पास किताब है यहीं पर घर में, इमाम अहमद एकेडमी बरेली से छपी। तो फोटो खींच के भेजे मैंने व्हाट्सएप। तो हजरत आपने गुमराही का हुक्म तो लगा ही दिया, अब क्या भेजूं फोटो खींच के? इतने जल्दी हुक्म नहीं लगा। किताबत की गलती हो। इमाम अहमद एकेडमी से छपी है, कौन सी किताबत? मैंने शर्त के साथ हुक्म लगाया है, क्या? अगर ये अकीदा हो मासूमियत का, ये हो कि गुनाह हुआ हुजूर सल्लम से। अभी तो आप कह रहे थे कि दिल में कुछ भी हो, हाँ, जाहिर पे हुक्म लगता है। जाहिर पे हुक्म मतलब ये है कि जिनके बारे में हम जानते हैं, हाँ, वो नामूस रिसालत से पहरा देने वाले हैं। नहीं तो जिसने ये तर्जुमा किया, जिनका काम ही गुस्ताखी करना है, दोनों में फर्क होता है ना। जाहिरी तर्जुमा भी आपने बताया। मैंने कहा कि ये अकीदा रखते हुए, अगर ये अकीदा रखते हुए नहीं किया, जैसे मासूम जानते हुए किया, फिर तो सही है। तो गलत, तो तर्जुमा बहरहाल गलत है। तो फिर तो अल्लामा नकवी खान का तर्जुमा गलत हुआ। गलत होगा बिल्कुल। और इतने हालात के वालिद के बारे में आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो? गलत तर्जुमा। हालात हालात के वालिद हैं, मर्तबे में बड़े हैं, वो आप होने की हैसियत से बड़े हैं, लेकिन आला हज़रत इल्म के हिसाब से आला हज़रत का मतलब बड़ा है ना। अरे बड़ा क्या है उनके, उन्होंने तर्जुमा से हो सकती है। जैसे वजह बालन फाजा का तर्जुमा किसी ने अगर ये किया, जब आपको राहबूला पाया तो राह दी,
तो इस पर तो कोई हुक्म नहीं होगा ना। अगर जानबूझ कर गलती करेगा तो होगा हुक्म। क्या हुक्म लगेगा इस पर? और अगर खतान ऐसा हो गया हाँ, तो अल्लाह ताला हो सकता है मज़रत कबूल फरमाए। तो उन्होंने यही तर्जुमा किया अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह ने सफ़ा 124 तफसीर हमशा जिल्द अव्वल में। वो है जब आपको राह भूला पाया तो राह दी। अच्छा, इन्नका मय्यतून इन्न मय्यतून में आलात का तर्जुमा यह है कि आपको इंतकाल फरमाना है, उनको भी मरना है। 23 पारी की आखिरी है। और एक साहब तर्जुमा ये करते हैं हजरत को खिताब होता है कि तुम भी मरोगे और वो भी मरेंगे। तो अब ये अदब के हिसाब से तो सही नहीं है, लफ्जी तौर से अदब यानी अदब नहीं, ये तो अदब में कमी है इसमें। हाँ, लेकिन इसमें कोई फतवा तो नहीं लगेगा, जाहिर फतवा तो नहीं लगना चाहिए। हाँ, इसमें तर्जुमा ये किया कि हजरत को खिताब होता है कि तुम भी मरोगे वो भी मरेंगे। ये सफ़ा 201 में हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अलम नशरा। और बताऊं हजरत, उन्होंने सफ़ा 117 पे लिखा है जब आपको अक्ल में कामिल पाया तो नबुव्वत और रिसालत से सरफराज फरमाया। अक्ल को कामिल पाया, अक्ल कामिल 40 साल में मानी जाती है हजरत। तो इससे इस पर भी कोई हुक्म तो नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है जब आपको अक्ल में कामिल पाया तो नबुव्वत और रिसालत से सरफराज फरमाया। सरफराज फरमाने का मतलब ये है कि आपको ऐलान नबुव्वत का हुक्म दिया, मनसब रिसालत पे अमल करने का हुक्म हुआ। अच्छा, हजरत इस इबारत से तो फतवा नहीं लगेगा। जैसे एक साहब ने लिखा है कि ए हबीब मेरे, मैंने जो उमूर के तुझसे कब्ल अज नबुव्वत वाक़े हुए और जो कसूर के आइंदा वाक़े होंगे सब माफ किए। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। जैसे उनकी नीयत तो सही है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमी नहीं की। अब जैसे बेहतियाती की वजह से ये सब होता है। तो हालात के वालिद से कौन सी बेहतियाती होगी? ये अल्लामा नकवी खान नहीं लिखा, सब मासूम थोड़े थे। अरे तो अब महफूज तो थे ना हज़रत। बिल्कुल महफूज महफूज होना कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, उनको जरूरी, हालात का भी महफूज होना जरूरी नहीं है फिर तो। अभी ये वाकई यही है कि हालात महफूज है। अच्छा, अभी तो कोई खामी सामने नहीं, गलती नहीं आई है। जैसे दो तर्जुमे बता रहा हूँ आयत तत्हीर का। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, बेशक अल्लाह तो यही चाहता है अहले बैत के तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे और तुम्हें पाको साफ करके खूब सुथरा कर दे। और एक साहब तर्जुमा करते हैं कि अहले बैत अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे आलूदगी को दूर ही रखे, नापाकी को दूर ही रखे और तुम्हें पाको साफ ही रखे। अब इसमें किसको बेहतर समझे? एक तर्जुमा ये है कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे और एक तर्जुमा है कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे अहले बैत। कौन सा अच्छा लग रहा है अपने हजरत? मैं तो दूरी रखे वाले को दूरी रखे वाले को मानता हूँ। जो अहले बैत में नापाकी नहीं मान रहा वो वाला तर्जुमा बेहतर है कि तुमसे नापाकी को दूरी रखे। और वो जो तर्जुमा करते हैं थानवी साहब के बड़े भाई कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे, उसे मैं भी सही नहीं मानता जो थानवी साहब के बड़े भाई ने किया है। लेकिन एक तर्जुमा ये है कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे, इसे मैं अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसमें वो नापाकी नहीं मान रहे हैं ना अहले बैत नजर। अब वो कहना है कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे, वो अहले बैत में नापाकी मान रहे हैं। जैसे कहते हैं ना सूरह फतह में ऐसा तर्जुमा क्यों कर दिया कि आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए तो नबी को नऊज़ुबिल्लाह ऐसा मान रहे हैं। तो वही बात नहीं आ गई, अहले बैत में नापाकी मान रहे हैं, ये तर्जुमा करके कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे। सही है ना? इधर क्या ख्याल है? उसूल के मुताबिक, तर्जुमे के उसूल के मुताबिक सही है कि ज़हब अन जो लुगत में आता है। तो फिर मैं उसूल के मुताबिक गलत क्यों मानना है? सूरह फतह की पहली आयत कि अगर कोई ये तर्जुमा कर देता है कि हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, वो थोड़ी कह रहा है, वो उसूल के मुताबिक है, आयत का ही तो तर्जुमा कर रहा है ना, उसके दिल में ऐसी नियत थोड़ी। वहाँ भी तो उसूल माना जाए, वहाँ भी उसूल माना जाए, यहाँ जैसे उसूल माना है वहाँ भी मान लिया। लियागफरका नहीं है, लियागफरलका है। हाँ, काफ इंतिफा के लिए। हाँ, समझ रहे? आयत है लियागफरलका नहीं है, लियागफरका। हाँ, वो तो सही है। अल्लाह ने तर्जुमा किया कि अल्लाह ने आपके सबब आपके अगलों के पिछलों के गुनाह माफ किए। तो इसमें अगले से क्या मुराद है, पिछलों से क्या मुराद है? वो अरबी इसमें अगलों से क्या मुराद है, पिछलों से क्या मुराद है, वो तशरीह तो की नहीं उन्होंने कि साहब
तमाम साहब किराम मुराद हैं या उनसे पहले वाले कौन लोग मुराद हैं? आपके अगलों के पिछलों में हम लोग आएंगे, उम्मत आएगी, अगलों में साहब किराम तो मौजूद नहीं है। पिछले मुराद है, जैसे साहब किराम तो मौजूद नहीं है, साहब किराम तो मुराद होंगे ही नहीं अगलों में तो और भी लोग मुराद हो जाएंगे। फिर अगलो उम्मत में अगले तो वही साहब किराम ही है ना। नहीं तो अगलों में साहब किराम तो मौजूद हैं, तो फिर तर्जुमा ये होता है जो अभी मौजूद हैं इनके गुनाह माफ हुए और जो पिछले आएंगे उनके गुनाह माफ, ये तर्जुमा होता। साहब किराम अगर मुराद होते तो उन्होंने जो तर्जुमा किया आपके अगलों के आपके पिछलों के आला हज़रत ने, और उनके वालिद ने किया है कि हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया। बाप बेटे के तर्जुमे में ही फर्क। अब आप ही फैसला करें हज़रत, हम बाप का तर्जुमा माने कि बेटे का माने। बेटे का माने। बाप का मर्तबा बुलंद होता है, बाप होने की हैसियत से बुलंद होता है। कोई जरूरी नहीं है कि बेटा बाप से छोटा ही आलिम हो। यहाँ तर्जुमा ये किया वयाहदिया का सिरात मुस्तकीम, अल्लाह आपको सीधी राह चलाए, और एक तर्जुमा है कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए। अब दिखाए और चलाए में कौन सा अच्छा माना? आपको नहीं है अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला दिखा। हाँ, चला वाला ज्यादा सही है। हाँ सही, सही दोनों है। नहीं ये सही है, चला वाला सही है, चलाए, क्योंकि दिखाने में तो थानवी साहब वाले में लोग इतराज करते हैं कि अल्लाह ने क्या रास्ते दिखाया। लोगत के हिसाब से दोनों तर्जुमा सही है, तो फिर थानवी साहब का भी सही मारे अल्लाह को सीधी राह दिखा उन्होंने किया है। हाँ उन्होंने दिखा, वो नहीं देखे हुए थे इसलिए उन्होंने किया दिखा। अच्छा नहीं देखे हुए थे, हम लोग देख चुके हैं। हम लोग नियत करते हैं अल्लाह चला हिदायत की निस्बत। तो नबी से मुताल्लिक है नहीं, सूरह फातिहा की आयत तो दुआई आयत है। वो थानवी साहब ने किया अल्लाह को सीधी राह दिखा, आला हज़रत ने किया चला, और ये आयत नबी से मुताल्लिक है, सूरह फतह की पहली आयत। यहाँ आला हज़रत ने किया अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, तो इसका मतलब आला हज़रत का एतराज, आला पर एतराज होगा कि क्या अल्लाह ने नबी को सीधी राह नहीं दिखाई? जो आला हज़रत तर्जुमा कर रहे हैं अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, सूरह फतह में आला हज़रत ने फरमाया। हाँ आला हज़रत ने तर्जुमा किया अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, तो गलत है ना? जैसा आप कह रहे हो कि थानवी साहब कहाँ दिखा क्या है, कहाँ पे आप देख लो, कंज़ुल ईमान देख लो, कहाँ पर ये आयत का सूरह फतह की पहली आयत है ना फतह लगा फतह मुबीन। आपके सदक़े में आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमाया। नहीं वो तो किया है, लेकिन वयाहदिया का सिरात मुस्तकीमा जो आगे आयत है ना, लफ्ज वयाहदिया का सिरात मुस्तकीमा, आलात ने तर्जुमा किया अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, और उनके वालिद ने किया अल्लाह आपको सीधी राह चलाए। तो आपने कहा कि चला वाला सही है, यहाँ बाप का सही है, बेटे का सही नहीं है हज़रत। और थानवी साहब ने भी यही किया कि अल्लाह आपको सीधी राह चलाए, वह थानवी साहब ने कर दिया। हम लोग थोड़ी कह रहे हैं कि थानवी साहब का तर्जुमा गलत है। अरे थानवी साहब ने सूरह फातिहा में दिखा कर दिया, तो यहाँ आला हज़रत ने दिखा कर दिया, एक ने वहाँ चला कर दिया, एक ने यहाँ चला कर दिया। तो दीन नाजिल हो रहा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। थानवी साहब ने यहाँ चलाए किया, वयाहदिया का सिरात मुस्तकीम, आला हज़रत के वालिद ने भी चलाए किया अल्लाह आपको सीधी राह चलाए। यहाँ फाजिल बरेलवी ने दिखा दिया अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, तो क्या अल्लाह ने सीधी राह नहीं दिखाई है नबी को? वयाहदिया का सिरात मुस्तकीम, आप देख लो कंज़ुल ईमान। हाँ है, देखिए जरा देखिए। मसला ये है, नहीं देखिए तो नहीं, पढ़ के तो बताइए सर, आवाम को भी तो मालूम हो कि कैसे आंखों में धूल झोंकी जाती है। नहीं इसमें नहीं पढ़ के बताया, सबको मालूम हो जाए कि कितना बेवकूफ बनाया जा रहा था उम्मत को 500 साल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आप बताए तो सही, क्या बेवकूफ बनाने की कोई बात नहीं है। कंज़ुल ईमान है सामने। ठीक है मैं देखता हूँ। नहीं अभी बता दें ताकि मालूम हो जाए आवाम को कि हाँ। नहीं वहाँ देखिए आला हज़रत ने जो तर्जमा किया है तफसीर के मुताबिक, तो बाज़ाब्ता तर्जमा को तफसीर से मिलाने का काम लगाया था आला हज़रत ने अपने शागिर्दों को। इसमें कौन सी तफसीर है कि अल्लाह ने, हो सकता है वहाँ मतलब ये हो अल्लाह ने क्या आपको सूरह फतह ये आखिरी सूरह है नहीं। हाँ नहीं अल्लाह आपको सीधी राह, क्योंकि दीन सुनिए हमारे बात सुनिए ना, अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए। साफ मतलब ये हो रहा है कि जैसे थानवी साहब पे एतराज होता है कि अल्लाह ने क्या रास्ता नहीं दिखाया, यहाँ भी वही एतराज हो रहा है कि अल्लाह ने नबी को। तो ये हम लोगों के लिए है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबी पर दीन उतर रहा था ना। अरे तो उतरने का सिलसिला जारी था। यादी मतलूब वाला मसला थानवी साहब को भी तो माना जाए कि उन्होंने अगर दिखा कर दिया तो क्यों एतराज कर रहे थे लोग? तो कहाँ हम लोग एतराज कर रहे हैं? अरे कहते हैं लोग ऑपरेशन करते हैं तर्जुमों का कि थानवी साहब ने ऐसा किया तो अब्दुल कादिर साहब ने ऐसा किया, शाह वली अल्लाह ने। ये हम लोगों के लिए है ना, दीन पूरा नाजिल हो गया आका अलैहिस्सलाम पर। जब दीन नाजिल हो रहा था तो रास्ता दिखाया जा रहा था, हुजूर उस पर चल रहे थे।
हाँ। जब पूरा दिन नाजिल हो गया तो अब चलना है, बस देखने का तो मामला खत्म हो गया। तो थानवी साहब ने किया, अल्लाह तो को सरकार तो वही मैं बता, सुनिए ना, ये कब दिन सूरह फतह जो है, हाँ। मेरी बात सुनिए पहले पूरी। हाँ। उम्मत का मामला अलग है, नबी का मामला अलग है। नहीं तो वालिद ने नबी तो को अल्लाह ताला, वालिद साहब ने सुनिए तो ना, किया है ना, वो वालिद साहब ने जो तर्जमा किया है मैं उसको भी गलत करार नहीं दे रहा हूँ। दुआ करनी है, हाँ। अल्लाह ताला से हक देखने की दुआ भी करनी है, हक पर चलाने की भी दुआ करनी है। तो हक दोनों दुआ सही है। नबी के सत्ते में उसूली तौर पर कोई गलत नहीं है, अल्लाह हमें सीधे रास्ता दिखा। नबी के सत्ते में तो पूरी दुनिया को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। नबी फरमाते हैं, नबी पर जो है सुनिए, नबी फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। अब यहाँ दिखाने वाली कौन सी बात आ गई? मुअल्लिम जो सुनिए, जब दीन नाजिल हो, जब तक पूरा दिन नहीं नाजिल हुआ, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, हजरत दीन क्या जब तक ये आखिरी आयत नाजिल नहीं हुई, हाँ, उस वक्त तक दिखाने का सिलसिला चल रहा था। अल्लाह ने दीन को मुकम्मल पूरा दिन नाजिल हो गया तो अब सिर्फ चलना है जी। जब दीन पूरा नाजिल हो गया तब तो सिर्फ दिन पे चलना है। हाँ। जब तक के कुरान पाक की आखिरी आयत नाजिल नहीं हुई थी, अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन सब बता रहा था, दिखला रहा था। तो उसके हिसाब से वो सही है सूरह फतह की आयत। तो फिर और अब हम लोगों को जो दुआ करना है, हम लोगों के पास तो पूरा दिन मुकम्मल हो गया। अल्लाह को सीधी राह दिखा, वही ना। अब तो चूंकि पूरा दिन आ चुका, रास्ता हम देख चुके, सही मानना पड़ेगा ना। चलने का मसला है। अरे अब सिर्फ चलने का मसला है। तो थानवी साहब का भी सही है ना फिर तो, इस्लाम को सीधी राह दिखा, वही उनके वालिद ने किया, इस्लाम को सीधी राह बतला। सूरह फतह के हिसाब से सही है। हाँ वही तो यार, सूरह फातिहा के हिसाब से भी हम गलत नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने बिला वजह गलत तर्जमा किया, लोग बात बिला वजह। लेकिन बेहतर तर्जमा जो है आला हजरत का, वो तो देखिए 1400 साल पहले अल्लाह ने दीन मुकम्मल किया, और फाजिल बरेलवी ने अपने जब पैदा हुए उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत उन्होंने देखा होगा मामला कमी बेशी का, तो उसको मुकम्मल कर दिया। यानी 14वीं सदी में दीन मुकम्मल हुआ है ना हजरत पूरा। दीन मुकम्मल तो हालत के जमाने में ही हुआ है ना पूरा, 14वीं सदी में, कि हालत ने फरमाया कि जो मेरे दीन मदद पर अमल करेगा, मेरे दीन मदद पर अमल करना जरूरी है। ये लिखा है अहकाम शरीयत मलफूज में, लिखा कि मेरे दीन मदद पर मजबूती से कायम रहना। ये हर फर्ज से हम कब्र में आपसे मुनकिर साहब ने दोहराया, इसी उर्स में दोहराया कि क्या है, हाशमी हो या मदनी हो, बगदाद का रहने वाला हो, बड़े पीर साहब को माने, ख्वाजा गनी अजमेरी को माने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माने, किसी को ही माने, जब तक वो मसले के हालत को नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं होगा। तो मसला, उसका मतलब ये है कि दीन तो हालात के जमाने में तो मुकम्मल हुआ है ना, दीन पूरा मुकम्मल, जो भी हालात ने सब कुछ बताया जैसा आप फरमा रहे हो। दीन तो अल्लाह हज़रत ने किया ना, जैसे अल्लाह ने तो फरमा दिया मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। अब मतलब ये है, आशिया निगरानी कर दी इसमें। सुनिए, कब्र में आपसे सवाल होगा, उसमें कि हालत के बगैर मुसलमानी नहीं होगा, यानी पूरे अरब 56 मुल्क अरब के मुसलमान नहीं है, वो हालत के मसलक कोई नहीं मानते। मतलब ये सुनिए, हजरत ने कि कोई एक बात भी साबित कर दीजिए जो अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ आला हजरत की बेऐन ही सिर्फ तमीज के लिए, चूंकि वहाबी देवबंदी भी कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, तो सिर्फ तमीज के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो मसल के आला हजरत पर है। बाकी आला हजरत ने कोई नई बात नहीं की, पूरा दीन दीन पर दीन मुकम्मल हो गया, उसके बाद जो दीन को नाकिस माने वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, आला हज़रत रिज़वान ने दीन की तशरीह की है, जो तशरीह कुरान और हदीस के मुताबिक है। अच्छा, ये और अक़ीदा अहले सुन्नत के मुताबिक है। तो मतलब ये है कि जो अक़ीदा अहले सुन्नत से हट जाए, हाँ कोई बात जैसे दीन के खिलाफ नहीं की, जैसे अगर थानवी साहब के बड़े भाई ये बात लिख रहा है तो क्या ये दीन के खिलाफ मानी जाएगी? इन्होंने लिखा है थानवी साहब के बड़े भाई ने, जब मजमा हुआ कुफ्फार का मदीने तैयबा पर कि इस्लाम का किला कमा कर दें, ग़ज़वा एहज़ाब का वाक़या है, अल्लाह ने मदद फरमाना चाहिए अपने हबीब की, यानी अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, तो शिमाली हवा को हुक्म हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया जा काफिरों को नेस्तनाबूद कर दे, तो इस हवा ने कहा अल्लाह से बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती, तो थानवी साहब के बड़े भाई लिखते हैं कि अल्लाह ने इस हवा को बंद कर दिया। क्या सही है सर?
صحیح ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے؟ مخلوق ہے نا. ارے صاحب ہوا مکلف ہی نہیں ہے اس طرح کی باتوں کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی سے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. تو کیا آگ اکڑی تھی کہ میں نہیں ہوں گی ٹھنڈی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو حکم دیا. سنیے نا، ہوا اللہ سے نہیں کر سکتی ہے کیا؟ یہ کہے گی کہ میں باہر نہیں، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. کیا مطلب ہے بیویاں رات کو باہر بھی نہیں نکلتی ہیں؟ اور یہ ہوا کو بانجھ ہوتے ہوئے کہاں دیکھا انہوں نے؟ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی 73 میں. اب آپ کہہ رہے ہو کہ کون سی بات؟ بانجھ ہونے کا مطلب یہ بانجھ ہے ہوا. وہ ہوا چلتی ہے تو بارش نہیں ہوتی ہے. کہاں کی ہوا چلتی بارش؟ مطلب یہی ہے کہ جس ہوا سے یہ چلے گی تو بارش نہیں ہوگی. مطلب کہاں کی ہوا؟ تو مطلب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم دو طرح کے ہوتا ہے، امر تکوینی. یہ غیب کا علم کہاں سے ہوئی ہے کہ ہوا بانجھ ہے؟ یہ کس نے پتہ لگا لیا؟ کون سے سائنسداں پیدا ہوئے زمانے میں کہ جو یہ کہنا کہ ہوا کے بانجھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہوا سے بارش نازل نہیں ہوتی ہے. یہ معلوم ہے نا ہوا جب دکھتی نہیں ہے غیر مرئی اس ہوا کے بارے میں غیر مرئی چیز ہے، جب دکھتی نہیں ہے تو کیسے آپ پتہ لگا رہا ہو کہ غیر مری ہے؟ غیر محسوس تھوڑی ہے، محسوس تو ہو رہی ہے، آدھی چلتی ہے تو مری تو ہے نا. غیر مری ہے تو آپ کیسے محسوس کرو گے بانجھ ہو گئی ہے؟ جو غیر محسوس نہیں ہے، غیر مری ہے، غیر محسوس نہیں ہے. اچھا آپ کے پاس ہوا آ رہی ہے، اس میں کوئی بانجھ ہوا آ رہی ہے آپ کے پاس؟ پتہ چلے گا آپ کو؟ ہوا چلتی ہے شمالی تو بارش نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ کے پاس آ رہی ہے ہوا، کوئی معلوم ہو رہا ہے کہ بانجھ ہے؟ یہ بانجھ بالکل معلوم ہوتا ہے، پنکھا چل رہا ہے میرے ساتھ، میں ہوا کو محسوس کر رہا ہوں. نہیں بانجھ معلوم ہو رہا ہے کہ بانجھ ہے اس میں؟ بانجھ مطلب یہ ہے کہ اس رخ کی ہوا چلے گی تو بارش نہیں ہوگی، یہ ہے بانجھ ہونے کا مطلب. تو یہ ہوا میں اتنی ہمت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر دے؟ آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہمت نافرمانی کرنے کی؟ انسان کر رہے ہیں، جنات کرتا ہے. انسان کے اوپر کیوں آپ وہ لالا کر رہا ہو؟ ہر مخلوق مکلف ہے، مکلف ہے گناہ کے اور نیکی کے، لیکن اللہ نے مکلف بنایا گناہ نیکی کا. یہ پتوں کے بارے میں، درختوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ تو زندگی بھر یعنی یہ تو ہمیشہ تسبیح کرتے ہیں. پتے درخت قرآن میں ہے وہ منشن اللہ سب ہم دہی، جتنی چیزیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے قرآن سے ثابت ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو. کرتی ہے لیکن ارے نہیں نافرمانی نہیں کرتے صاحب، پرندے کی بات الگ ہے. فرشتوں کے بارے، صرف فرشتوں کے بارے میں بالکل الگ ہو گئی صاحب. پرندوں میں تو ایک بات اب یہ ثابت کیجئے کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہوا نافرمانی نہیں کر سکتی ہے؟ ارے صاحب یہ تو قرآن میں ہے بھائی منشن ہمدہی. ارے تو تصویر کرتی ہے، کیا انسان تصویر نہیں کرتے ہیں؟ تصویر کرنے والا نافرمانی نہیں کرتا ہے کیا؟ آپ بتا دو کہاں لکھا ہے کہ ہوا اللہ کی آپ دعا کر رہے ہیں نا کہ ہوا نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسے غلطی خطا ہو سکتی ہے. ہوا سے بھی ہو سکتی ہے، پانی سے بھی ہو سکتی ہے. پانی سے بالکل ہو سکتی ہے. کس کتاب میں، کس حدیث میں؟ فرشتوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، معصوم نبی ہیں اور فرشتے ہیں. تو پھر ہوا باقی مخلوق معصوم نہیں ہے. ارے ہوا بھی حدیث شریف آپ نے پڑھا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری کا انصاف دلائے گا بغیر سینگ والی سے. جب انسان جنات کے علاوہ مکلف ہی نہیں ہے تو کیسے جو ہے ہوا پانی پر دلائے گا؟ وہ ہوا پانی کے اوپر نہیں ہے وہ بات، اطلاق اس کا ہوا پانی پر نہیں ہوگا. فرشتے انبیاء معصوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب باقی جنات اور انسانوں پر وہ بات فٹ ہوگی، وہ جانوروں پر بھی فٹ نہیں کر سکتے. ہم جانوروں کا کوئی حساب نہیں ہوگا. جانوروں کا حساب اتنا ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا دلا دے گا. جانور کو، ایک جانور کو دوسرے جانور سے جس نے تکلیف دی ہوگی مارا ہوگا، لیکن ان کا کوئی ایسا حساب تھوڑی ہوگا جیسا ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا. ایسا حساب جانوروں کا تھوڑی، نہ پرندوں کا کوئی حساب ہوگا اس طرح سے. حساب ہی نہیں ہوا تب نہیں. پرندوں کا بجے جیسے کسی پرندے کو مارا ہوگا، چوٹ ماری ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دلا دے گا. حساب ایسے تھوڑی ہوگا پرندوں کا. کیا یہ خطا ہی نہیں ہے، جرم ہی نہیں ہے کہنا کہ علم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر والصافات. یہ قرآن میں کہ کل قد علم صلاته، ان میں سے ہر ایک پڑھتا ہے نماز و تسبیح اور تسبیح. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. جتنی بھی مخلوق ہے یہ غیر مرئی مخلوق، یہ اللہ کی عبادت میں اطاعت میں رہتی ہے. فرشتے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، اور یہ ساری چیزیں. جیسے سورج ہے، چاند ہے، کیا سورج چاند سے بھی آپ یہ امید رکھو گے یہ نافرمانی کر سکتے ہیں؟ سورج چاند نہیں ہے، جملہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ قرآن میں رب المشرقین و رب المغربین،
तमाम मशरिकों का रब, मगरिबों का रब। अल्लाह के हुक्म से सूरज निकलता है और डूबता है। कुरान में याती मिनश क्या है वो कुरान की आयत है, सूरज अल्लाह के हुक्म से निकलता है। कहने मतलब ये है कि जैसे देखिए पूरा रजिस्टर किया हुआ है कि अंबिया कराम और फरिश्ते ये मासूम होते हैं, मासूम खता होते हैं उनसे। नहीं, इन्होंने ये लिखा है मजमा हुआ। जैसे पूरी बात सुन लीजिए, कहने मतलब ये है कि किताबों से साबित है कि अंबिया कराम और फरिश्ते ये मासूम होते हैं, मासूम खता होते हैं, नाफरमानी नहीं हो सकती है, गुनाह सरजद नहीं हो सकता है। हाँ। बाकी दीगर मखलूकात हैं वो हवा से साहब, हवा से। फिर ये अल्लाह के रसूल के जमाने की बात है, कौन साहबी ने रिवायत की है ये? उस साहबी का नाम तो है इसमें 73 में अल-मलफूज में ये इबारत लिखी है, 73 अल-मलफूज जिल्द 4। सुनिए, साहबी का नाम भी नहीं है। अब आप कैसे हवाई फायरिंग मारने के साथ कर सकती है? इसका साहबी का नाम तो होता। अल्लाह के रसूल के जमाने की बात है। अल्लाह के राह जाओ, काफिर को नेस्तनाबूद कर दो हवा से। हवा अल्लाह से कह रही है कि बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती है। कौन देख रहा है? कौन हवा की बात सुन रहा है? कौन अल्लाह की बात सुन रहा है? कौन देख रहा है कि हवा को अल्लाह ने बांझ कर दिया? किसी भी हवाला नहीं है किसी किताब का, सिर्फ आला हज़रत ने लिखा है 73 जिल्द 4 में। अब आप तो सबको चित को पुट को चित कर दो कि नहीं, जो उन्होंने लिखा हम तो उसको सही करके ही बताएंगे, क्या कुछ भी हो जाए। मैंने कुरान और हदीस से ही जो चीजें साबित होती है उसी को बताई जाती है। ये तो कुरान हदीस से साबित ही नहीं है कि हवा अल्लाह की नाफरमानी कर दे। जो इन्होंने वाक़या लिखा किसी किताब में हवाला ही नहीं है इसका। हवाला नहीं, उसको तहकीक कीजिएगा तब। दुनिया की किसी किताब में हवाला नहीं है, दुनिया की, पूरी दुनिया की। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, किसी किताब में ले आओ। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया की किसी किताब में आप ये बात बता दो कि हवा ने अल्लाह की नाफरमानी की। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, पूरी दुनिया के आलिमों ने किताबें लिखी हैं, किसी एक किताब में बता दो यही बात कि हवा ने अल्लाह की नाफरमानी की और हवा को अल्लाह ने बांध कर। और वो आदमी कौन सा इतना बड़ी हस्ती है जो हवा की बात भी सुन रहा है और अल्लाह की बात भी सुन रहा है, और हवा मुंहजोरी कर रही है वो भी सुन रहा है, और हवा बांझ हो रही है वो भी देख रहा है। और ये अल्लाह के रसूल के जमाने की बात है साहब, अल्लाह के रसूल के जमाने की बात है ये। दलील आप मांग रहे हैं, दलील आपको दी जाएगी, ठीक है, हवा के ताल्लुक से। मेरा कहना मतलब ये है, पहले सुन लीजिए कायदे से। एक है कुल्ली हुक्म। कुल्ली हुक्म ये है कि जो अंबिया कराम और फरिश्ता निजाम दोनों के हवाले से सराहतन ये साबित है कि कुरान और हदीस से कि ये दोनों मासूम खता होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो सकती है। और दीगर मखलूकात जो हैं ये सब अल्लाह के हुक्म से मुकल्लफ हैं। इंसानों और जिन्नातों के ऊपर वो बात है कि इंसान और जिन्नात के ऊपर मेरी बात पूरी होने दीजिए, इसके बाद बोलिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, इसके बाद बोलिए। दीगर मखलूकात के बारे में है कि अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, तस्बीह तहलील करते हैं, ठीक है, लेकिन जिन मखलूकात के ताल्लुक सराहतन ये नहीं है कि ये मासूम खता नहीं है, उनके ताल्लुक से ये हुक्म यही है कि उनसे गलती हो सकती है, गुनाह सरजद हो सकता है। तो फिर आला हज़रत से भी गुनाह पहले। तो आला हज़रत से भी मानो ना कि बेशक आला से बात पूरी होनी चाहिए, आप कहाँ बीच में टोक रहे हैं? हाँ, कहो कि आला से गलती हुई है, बेशक हुई है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले सुनिए पहले कायदे से। अब ये है कि तमाम मखलूकात में बहुत सारे मखलूकात है, इंसान है, जिन्नात है, हवा है, पानी है। अब किन किन मखलूक से कैसे कैसे गुनाह सरजद हुए उसकी तफसील के लिए कुरान और हदीस से तलाशी जाएगी। हवा के ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं, हवा के ताल्लुक से आपको दलील नहीं जाएगी, हवा ने कब सरकशी की, नाफरमानी की है कि कैसे की है, दलील तो देखिए। सुनिए पहले सुनिए। अब तमाम मखलूक जिस मखलूक अंबिया और फरिश्ते के हवाले से पूरा सराहतन के साथ साबित है कि मासूम खता है, ठीक है। इसके बाद दीगर जो मखलूकात हैं उनसे कैसे कब किस तरह गुनाह सरजद हुए हैं, इसकी तफसील, इसका डिटेल, इसका खुलासा आपको कुरान और हदीस में पेश किया जाएगा। आपको क्या चाहते हैं? आप हवा ताल्लुक से आप दलील चाह रहे हैं? ठीक है, आप हवा को अल्लाह का नाफरमान माने तो आला हज़रत को भी मान लो कि आला हज़रत ने भी नाफरमानी की, गलतियां की। अब कौन कब नाफरमानी की है उसको तलाशा जाएगा। अब आदमी कैसे ये तो अकीदे रखते हैं कि हाँ बेशक उनसे गलतियां हुई हैं, इतना तो बिल्कुल गलतियां हुई, बेशक गलती गलती के हवाले से इम्कान तो है गलती का। देखिए मिसाल के तौर पर अभी हम बधाई वाले अलग हो जाते हैं, उलमा बधाई क्यों ना अलग होते हैं? उन्होंने तो जुमे की अनाज अंदर दी, जुमे की अनाज अंदर देते हैं, इस पर मुकदमा हुआ। आला हज़रत मासूम नहीं है ना, हम मासूम हैं। मिसाल तो अपने महफूज है। मासूम तो तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते, आला हज़रत को नहीं मानने से कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो इमाम हुसैन को भी मासूम नहीं मानते, ना इमाम हज़रत अली को भी मासूम नहीं मानते। आप तो क्या मानते हो? हज़रत अली को मासूम मानते हो आप?
मासूम नहीं मानते हैं, लेकिन तो फिर कौन सी बड़ी बात करी कि आला हज़रत को मासूम नहीं मानते, औलिया कराम को भी नहीं मानते, फारूक आज़म को भी नहीं मानते, उस्मान गनी को भी नहीं मानते। ये कौन सी बड़ी बात कर दी कि हम हालत को मासूम नहीं मानते? तुम तो तमाम सहाबा को मासूम नहीं मानते, अहले बैत को मासूम नहीं मानते, अहले बैत को भी मासूम नहीं मानते हो आप लोग। तो मासूम नहीं मानने मतलब ये कि हम ये भी नहीं कहते कि उनसे धड़ाधड़ गुनाह संजत हुआ है। पहले सुनिए, पहले एतदाल में बात हम कर रहे हैं। अरे साहब ये सुनिए पहले, हम कर रहे हैं कि मासूम नहीं है, इतना बड़ा खिलाफ उम्मत में नहीं होता। उलमा बदायूं तो देवबंदी नहीं ना, उलमा बदायूं तो सुन्नी इकट्ठा बरेलवी हैं, वो भी अलग हो गए आदत से। उनको मुजद्दिद नहीं माना कि इन्होंने जुमे की अज़ान अंदर से बाहर दिला रहे हैं। कब्र में लिखना शैतान आता है बेकाने, जो चारों इमामों ने नहीं लिखा कब्र में शैतान बेकाने आता है। सुनिए पहले, या और कोई भी आलिम हो कुरान और हदीस की रोशनी में जो मसला बताए हैं, इसके बाद कोई नहीं मानेगा तो उसकी गलती है, उसके दिमाग का फतूर है। ये बताओ कब्र में शैतान आता है, किसी चारों इमामों में से किसी ने लिखा है? आपने तो आलिम है माशाल्लाह, पढ़ा है, कहीं चारों इमामों में से लिखा किसी ने कि मरने के बाद भी शैतान बहकाने आएगा, मुसल्लत हो जाएगा कब्र में आकर के? ये हदीस से साबित है। हदीस से साबित है तो इसको हदीस का जो इनकार करे वो क्या होगा फिर? हदीस कैसे कोई इनकार करेगा? अगर कोई इनकार कर दे कि ये हम नहीं मानते हदीस को, हदीस सही हो फिर इनकार करे तो वो तो मुसलमान ही नहीं है। ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं, हदीस सही में नहीं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं फतवा देता हूँ कि जो सही हदीस से इनकार करे तो मुसलमान ही नहीं है। इसके ताल्लुक जाता हूँ, अगर आप कह रहे हैं हदीस में है तो फिर सहाबा किराम का अमल होता, ताबईन का अमल होता कि कब्र पे अज़ान दिलवाते, कब्र में शैतान आता, ये पूरी किताबों में होता, फिक़ह हनफी में होता, फिक़ह शाफ़ी में होता, मालिकी में होता, हम्बली, चारों फिक़हों में नहीं पढ़ाया जाता कि कब्र में शैतान आता बेकाने। क्या ये चारों इमाम हदीस से नावाकिफ थे? किसी ने पढ़ी नहीं थी हदीस के कब्र में शैतान आता बेकाने? ये कमजोर रिवायत है, उसको आला हज़रत ने दलील बनाकर पेश किया, पूरी किताब लिखी, आपकी गलत कम फहमी है, तंग नजरिया की। ये बताओ कि आप ये मानते हो कि कब्र में शैतान बहकाने आता है? बिल्कुल आता है, जो हदीस से साबित है, कैसे नहीं मानिएगा? अच्छा, सहाबा किराम की कब्रों के लिए आप क्या मानते हैं? सहाबा किराम दुनिया से गए, उनकी कब्रों में भी क्या शैतान आया था? उनके कब्र में आए कि नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन जब हदीस से साबित है तो फिर सहाबा किराम की कब्रों में क्यों नहीं आए, जब आप ही कह रहे हो हदीस से साबित? सहाबा किराम हमसे ज्यादा मजबूत थे, पुख्ता थे अकाद में, शैतान उनको देखा। हमारे सारों के ताल्लुक से नहीं सुने हो कि शैतान देख के दूरी से भाग जाता था, शैतान देख के दूरी से भाग जाता था। अब हमको ये टटोलने क्या जरूरत है कि किस सहाबी के कब्र में शैतान आया? चलो सहाबा किराम की बात हदीस सुनिए पहले, नहीं चलो इस जमाने की बात, हमको मान लेना है, जमाने की बात ले लेते हैं। खाने काबा इसको मान लेना है, खाने काबा का तवाफ करते दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मरा, खाने काबा का तवाफ करते मरा, दुरूद शरीफ पढ़ते मरा, और रोज़त में रियाज़ुल जन्नत, जन्नत की क्यारी में मरा, सजदे की हालत में मरा। क्या उसकी कब्र में भी शैतान बहकाने आएगा? कहाँ गया नहीं गया वो अलग है, लेकिन जो रोज़त में रियाज़ुल जन्नत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, वहाँ सजदा करते हुए मरा, तो क्या उसकी कब्र में भी शैतान बहकाने आएगा? इसके कब्र में आया नहीं आया उसको हमको तलाशने की जरूरत नहीं है। से कौम में इख्तिलाफ पैदा करना, जो उसको मान लेना है। दुनिया के अंदर जायजा ले लो पूरे मुसलमानों का, तो यही कहेंगे हमने तो हमारे बाप दादा से भी नहीं सुना कि कब्र में शैतान आता है बहकाने। बस 3 सवालों का हमें मालूम है कि कब्र के अहवाल क्या है और अल्लाह के रसूल के बारे में सवाल होगा, इसके बारे में क्या कहते हो? पूरी दुनिया का अकीदा है, आप पूरी दुनिया में चले जाओ तो लोग कहेंगे 3 ही सवालों का मालूम है, हमें तो मालूम नहीं, हमने बाप से भी नहीं सुना, ना दादा से, न किसी आलिम से सुना कि कब्र में भी शैतान आता है बहकाने। ये सिर्फ आला हजरत ने लिख करके एक अकीदा बनाया है। और आप कह रहे हो कौन सी गलती है? उन्होंने लिखा है ना, मेरे दीन पर अमल करना हर फर्ज से हम फर्ज है, शरीयत से शरीयत के लिए हदीस की रोशनी में बताइए, ठीक है? ये हदीस की रोशनी में अगर होता तो जामे अजहर मिस्र वाले भी अकीदा रखते, उनका भी अकीदा नहीं है कि कब्र में शैतान आता है। आप फतवा मंगा लो, जामे अजहर मिस्र में भेज दो क्या कि साहब ये हदीस है कि कब्र में शैतान आता है बहकाने, आप क्या मानते हैं इस हदीस को? तो वहां से क्या जवाब आता है? हम मानेंगे, चलिए जामे अजहर वाले जो जवाब देंगे हम मानेंगे। जामे अजहर की पूरी दुनिया जाती है, 110 मुल्कों के लोग बता रहे हैं। चलो फतावा हुसामुल हरमैन को जामे अजहर वाले मानेंगे तो हम भी मानेंगे, इमाम काबा के खिलाफ वो अगर फतवा देंगे तो हम भी मानेंगे,
मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। अगर जान अजहर वाला फतवा देगा तो चलो हम भी मानेंगे। हम आपसे मानने का कह रहे हैं, बरेलवी भी जाता है, देवबंदी भी जाता है, एल हदीस भी जाता है, शिया भी, जहाँ सब जगह के लोग जान अजहर में जा रहे हैं, तो अब उस फतवे को मानना चाहिए। वो हुज्जत होगा। वो हुज्जत इसलिए होगा कि पूरी दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस मौजूद। जाना अजहर से आप मंगवा लो, फतवा हुसैन हरमैन के बारे में मंगवा लो, देवबंदियों के बारे में मंगवा लो, नदवियों के बारे में मंगवा लो कि नहीं आप मुसलमान मानते हो काफिर, इमाम हरम के बारे में मंगवा लो काफिर, तो हम भी मानेंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं, चलो फोन पे कहना इस बात को। जामे अजहर में से जिस दिन फतवा आएगा ना, पूरी दुनिया की मंगवा लेंगे, कुछ वक्त दीजिए, 1-2 महीने। पूरी दुनिया की आंख खुल जाएगी यार, इन्होंने आंखों में धूल का उनको बरेलवी बनाया, वो देवबंदी थे जामे अजहर वाले। एक हफ्ते के बाद बात करेंगे फिर।